हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं जेईई मेन 2026 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली रेडॉक्स का एक्सटेंशन है और इसमें अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मतलब एडवांस में अगर अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर हो सकता है। तो हम देखते हैं मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं 21 जनवरी शिफ्ट 2 से, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर अ क्लोज सर्किट डेनियल सेल विच प्लॉट ऑफ ई नॉट सेल वर्सेस टाइम इज करेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, अब ई नॉट सेल इट्स अ ईएमएफ ऑफ द सेल एट द फिक्स टेम्परेचर। तो ई नॉट सेल जो होता है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और टेम्परेचर। इस पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन चल रही है, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। इसमें टाइम पर वेरी कर रहा है बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में भी टाइम से वेरी कर रहा है, और 4 में भी ओके ई नॉट वैल्यू बढ़ती जा रही है अगर टाइम फिक्स है। तो ये सही नहीं है। आंसर शुड बी फर्स्ट वन, ई नॉट सेल इज कांस्टेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर। इजी क्वेश्चन था, आराम से हो जाता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जेईई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 पर आया है। mx is converted into the m plus and x minus, ksp is given 10 to power minus 10, e naught value metal reduction पे दे रखी है 0.79, e naught for metal insoluble salt. Metal insoluble salt is related to the SRP of metal ion and its solubility product. So basically equation ऐसे हो सकता है x minus mx that is solid and m, इस इलेक्ट्रोड को हम लिख सकते हैं mx plus 1 electron, this is solid, gonna be convert into the m and x minus. The reaction should look like that way, metal insoluble. तो बेसिकली ये इक्वेशन कैसे बनी होगी, दैट द टू हाफ इक्वेशन वी हैव रिटन हियर, mx solid is gonna be convert into the m plus and x minus, aqueous and aqueous, that is the solid, and फिर m plus aqueous is taking 1 electron and convert into the m solid. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये इक्वेशन मिली होगी। मेटल इनसॉल्युबल था तो इसलिए मेटल को हमने सॉलिड में डाल दिया। वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ओनली फॉर द metal insoluble, that should be not metal reduction SRP we put up, and here 0.059 by n log of KSP. So here the metal reduction is given, that is the 0.79, 0.059, n value is 1 because metal is accepting only 1 electron, and log of KSP 10 to power minus 10 is given in the question. So when we applying the value, we will get it 0.79 minus 0.059, log 10 की वैल्यू 1 हो गई और माइनस आगे आ गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.20 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन मिली में पूछा है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय द 1000, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 200 मिली वोल्ट। सो योर न्यूमेरिकल आंसर 3 डिजिट पे आंसर आ चुका है 200। सो हियर द सेल रिप्रेजेंटेशन आई राइट x minus mx is converted into the m plus 1 is converted into the 0. Let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर 3 23 जनवरी शिफ्ट 1 पर आया है। सिल्वर सॉलिड, AgCl सॉलिड, FeCl2 aqueous, FeCl3 aqueous with platinum. So here the silver and platinum, two inert electrode being taken, and FeCl2 and FeCl3 they are aqueous participating in the chemical reaction. AgCl is also solid, so not participating. So equation is like that, the silver solid Cl minus, so ferric will convert into the ferrous with AgCl solid, and these two are aqueous. So question is cell potential increases when?
So Nernst equation is telling E is equal to E naught cell minus 0.059 by n log of, since here the reduction, so Fe plus 2 and Fe plus 3 and Cl minus. These are the concentration is participating in the log Q value. So let us understand, if the Fe plus 3 you are increasing, then log value will also increase, can decrease the E cell value. So increasing the Fe plus 2 can increase the Q value and decrease the FeCl, तो ये wrong हो गया, this is wrong. Now Fe plus 3 if you are decreasing, so log Q value again increase, so E cell value फिर से decrease हो जाएगी, so this is also wrong. Now Fe plus 2 decreases, if you decrease the Q value is lesser, so E cell value will be higher, so that should be right, C should be right. So in option we will check, okay, only in one option is given C, so basically हमारा आंसर तो मिल गया, बट बाकी भी हम चेक कर लेते हैं. Fe plus 3 increases, if you increase the Q value decreases, so E cell value will increase, this is also right, yes. Cl minus increase, if the Cl minus you increases, the Q value decrease and E cell value will increase, that is also right. Your answer should be C, D and E, third one. We have question number 4, JEE Main 2026 28 January shift 2 पर आया है. Strong electrolyte AB at 28 degree Celsius. So we have this standard equation of molar conductivity. It's called Huckel-Sager equation, and find the A. So if we are comparing this equation with the straight line equation mx plus c, so here the slope itself is telling that minus A value we have, that is slope equal to. So since they are asking what is the A value, so they are asking about the slope. So slope, if I am solving this equation, mathematically it should be look like that, minus A. So we have to calculate this value. To calculate this value, its data is given, we can utilize this data and get to know the answer. So minus A should be is equal to, I'll take any two data in this table. Let's say हमने पहला और लास्ट ले लिया because it looks easier, 0.04 and 0.25. तो इसको डाल देते हैं हम, 96.1 minus 94.9 by square root of 0.04 minus square root of 0.25. इसका 0.2 हो जाएगा, इसका 0.5. तो A का वैल्यू ऑन सॉल्यूशन we will get it, that is minus 4. So we will get the A value equal to 4, and that's your answer. JEE Main 2026 जनवरी में पूछा गया है, 22 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है. द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस इज हैपनिंग लाइक दैट वे. अब इनका ई नॉट वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, सो मैं लिख देती हूँ. ई नॉट इसका दिया हुआ है माइनस 1.66 वोल्ट एल्यूमिनियम का. क्रोमियम का दे रखा है माइनस 0.74. आयरन का दे रखा है प्लस 0.77 वोल्ट एंड कोबाल्ट का दे रखा है प्लस 1.81 वोल्ट. अरेंज द स्पीशीज़ इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल. अब रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, तो एसआरपी सीरीज़ में जितनी नेगेटिव वैल्यू होती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट है, और जितना पॉजिटिव होता है उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो रिड्यूसिव एजेंट स्ट्रेंथ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने पर डिक्रीज़ होती है. तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रहा है एल्यूमिनियम का. सो एल्यूमिनियम मस्ट बी ऑन द टॉप. तो हमारे पास 3 ऑप्शन में दे रखा है एल्यूमिनियम. उसके बाद दूसरा नेगेटिव चल रहा है क्रोमियम प्लस 3 कन्वर्टिंग द क्रोमियम. तो इसके बाद क्रोमियम चार्ज हम बाद में लगाते हैं. फिर उसके बाद नेगेटिव में कौन चल रहा है, ओके हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो आयरन और फिर कोबाल्ट. अब चार्ज लगा देते हैं. तो देखो इफ़ इट इज़ रिड्यूसिव एजेंट, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और ख़ुद को ऑक्सीडाइज करेगा. तो क्रोमियम ईजीली कन्वर्ट हो सकता है क्रोमियम प्लस 3 में, तो यहाँ पे क्रोमियम ठीक है.
फेरस और फेरिक दे रखा है तो हम इसको +2 कर देंगे। फेरस विल कन्वर्ट इनटू द फेरिक, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कोबाल्ट +2 लगा देते हैं क्योंकि कोबाल्ट को किस में कन्वर्ट होना होगा, +3 में। तो हमारा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, 1 से। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन +2 एंड कोबाल्ट +2। क्वेश्चन 8 जेई मेन 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 पर पूछा गया है। गिवन थिंग्स दी गई हुई हैं हमने। M+2 कन्वर्ट टू द ज़ीरो, SRP वैल्यू गिवन है और ऑक्सीजन का वैल्यू गिवन है 1.23 वोल्ट। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। सो what value of pH will oxygen evolve start occurring at anode? Okay, numerical type value है। So see, according to the cell notation हमें ये तो समझ में आ गया कि ये कैथोड का सेक्शन है और ये वाला सेक्शन है एनोड का। कैथोड पर होता है रिडक्शन, सो M+2 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू द M, जिस पर इसकी SRP वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.994। इस वाले सेक्शन पे ऑक्सीडेशन होने वाला है तो H2O का करा देते हैं, वाटर का। इट विल गेट डिसोसिएट इनटू O2 प्लस 4H प्लस आयोन, इसको डबल लेना पड़ेगा, एंड द 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें SRP की वैल्यू दे रखी है 1.23 वोल्ट। तो ये नॉट वैल्यू दे रखी थी, तो इससे हमारा E नॉट वैल्यू आ जाएगा कैथोड माइनस एनोड पर। सो ये कैथोडिक हो गया है और ये एनोडिक हो गया है। सो 0.994 माइनस 1.23, इससे हमारा आंसर आ गया -0.236 वोल्ट स्टैंडर्ड कंडीशन पे। नाउ वी हैव टू अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन टू गेट द pH। तो अगर दोनों इक्वेशन का ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सेल इक्वेशन आ जाएगी। तो इससे हमारा इक्वेशन आ गया है 2H2 प्लस 2M+2 will convert into O2 plus 4H plus 2M. This is solid, this is aqueous, this is gas, this is aqueous, this is liquid. तो नेक्स्ट इक्वेशन बोल रही है E cell would be is equal to E naught cell minus 0.059 by N log Q। तो E cell का वैल्यू है -0.236, 0.059, N का वैल्यू 4 दे रखा है, ये रहा 4 इलेक्ट्रॉन, एंड लॉग Q वैल्यू डाल देंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट H+4 प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय M+2 स्क्वायर। तो यहाँ पे M+2, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज़ द 1 मोलर इज़ गिवन एंड दिस इज़ द 1 बार इज़ गिवन। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 मोलर एंड दिस इज़ ऑल्सो द 1 बार। तो हम pH वैल्यू निकाल सकते हैं व्हेन द सेल पोटेंशियल है 0, तो E का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। अब इससे हमारा आंसर आएगा 0.236 इज इक्वल टू 0.059 बाय 4 माइनस इंटू 4 लॉग ऑफ H प्लस आयोन। अब माइनस लॉग को pH लिख देते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो 0.059 pH 0.236, तो pH इज इक्वल टू आ जाएगा ऑन कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 3.9। तो तुम्हारा इंटीजर टाइप में आंसर आ जाएगा 4। सो वी हैव जेई मेन 2026 28 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है हमारे पास। BH4 माइनस ClO3 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू H2BO3 माइनस एंड Cl माइनस वेयर N is a number of electron transfer. So we can use the oxidation method or maybe the ion exchange method to balance this equation. तो यहाँ से जैसे नंबर दिख रहा है, अगर x plus 1 so x plus 4 equal to minus 1 so x equal to minus 5 we will get it, and यहाँ पे plus 1 x and minus 2 so प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जा रहा है +6 -1 -2, सो +3 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्लोरीन का चेक कर लेते हैं। क्लोरीन का x हो गया -2 सो x -6 इक्वल टू -1 सो x इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे -1 है, तो +5 से -1 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6 यहाँ है, मतलब इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे 4
4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ 3 का, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे हो गए हैं 24 इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली हमारा आंसर आ चुका है 24 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एन वैल्यू। इजी क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है। जिसने भी रेडॉक्स को बैलेंसिंग करना सीखा है तुरंत आंसर आ जाएगा। 28 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ x ml of 5m sodium bicarbonate solution mixed with 10 ml of 2m H2CO3 solution. मेक अ इलेक्ट्रोलिटिक बफर। ओके, ये एसिडिक बफर हो सकता है, वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है। इफ द सेम बफर इज यूज इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड रिकॉर्ड अ सेल पोटेंशियल 235.3 MV, देन द वैल्यू ऑफ x इन ml। ओके, तो हमें बफर का इक्वेशन, मतलब ये आयोनिक इक्विलिब्रियम को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ मिक्स कर दिया है। हमारे पास सेल का नोटेशन दिया है SnOH -2, HSNO minus, and then other side bismuth, and these all are the values are given. So first we will write the balance equation to identify the x value. So first we calculate the E naught value. E naught value SnOH6 जो एनोड पर दिया हुआ है according to the cell notation, बिस्मिथ वाला दिया हुआ है कैथोड पर। तो हमारे पास E naught का वैल्यू होता है E कैथोड माइनस E एनोड। सो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू हमारे पास है -0.44 माइनस 0.9, तो वैल्यू आ चुकी है 0.46 V। नाउ वी विल राइट द एनोडिक इक्वेशन। एनोड पर गिवन है SnOH6 -2, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो HSNO -2 O2 minus is gonna be convert into the SnOH whole 6 -2. Why we are writing? Because here the oxidation take place. Oxidation number अगर Sn का देखोगे यहाँ पे तो +1 x -4 equal to -1. So H should be is equal to -1 +4 -1. So we got it the two answer, and this side we are getting x -6 equal to -2. So x equal to 4. मतलब इस तरफ +4 का चार्ज आ रहा है, इस तरफ +2 का, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया जो एनोड पर हो रही है। नाउ वी विल राइट द रिडक्शन। रिडक्शन पे Bi2O3 इज गिवन विच इज़ गोना बी कन्वर्ट इनटू द बिस्मथ। तो ये +3 से 0 पे चल रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। सो दीज आर द टू इक्वेशन। फर्स्ट वन इज एनोडिक इक्वेशन, सेकेंड वन इज कैथोडिक इक्वेशन, एंड व्हेन वी आर डूइंग द एडिशन ऑफ दिस O minus Bi2O3 will give us the SnOH whole 6 -2 plus bismuth. आयन एक्सचेंज मैथड और मे बी द ऑक्सीडेशन मैथड से तुम इसको बैलेंस कर सकते हो। सो एज ऑफ नाउ आई एम राइटिंग द बैलेंसिंग वन, 3 thrice of this, twice of this, and to make it the entire thing balance we have to use the basic medium जो OH माइनस में गिवन है। बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 6H2O प्लस थ्राइज ऑफ OH माइनस। तो ये बैलेंसिंग तुम आयन एक्सचेंज मैथड या ऑक्सीडेशन मैथड से करो। नाउ वी विल राइट E cell value. E cell E naught minus 0.059. Okay, here number of electron exchange take place. तो 4 से 2 चल रहा था तो 2 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ से चल रहा है हमारा 3 से 0 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करने के लिए 3 एंड ट्वाइस मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। सो n शुड बी इज इक्वल टू 6 एंड लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट हमारे पास हो रहे हैं, दिस इज एक्वस, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस। सो SnOH होल 6 -2 के ऊपर 3 का पावर आ रहा है डिवाइड बाय HSnO2 माइनस के ऊपर 3 का पावर आ रहा है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास E नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी थी। E नॉट की वैल्यू थी 0.46 माइनस 0.059 बाय 6 लॉग ऑफ 0.5 का क्यूब डिवाइड बाय 0.05 का क्यूब। वी विल राइट द OH माइनस ऑल्सो इनटू OH माइनस का क्यूब, एंड E सेल वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 235.3 मिली। तो हम इसको सिर्फ वोल्ट में चेंज कर देंगे तो 0.2353 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा सॉल्व करने पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, एंड द POH जब निकालेंगे नेगेटिव लॉगरिथम करके, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ आफ्टर कैलकुलेशन 6.6 हमारी आ जाएगी।
इससे pH निकालेंगे तो pH हमारे पास होता है 14 माइनस POH। pH आ चुका है हमारे पास 7.4। नाउ वी विल अप्लाई द बफर इक्वेशन सिंस इट इज़ एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर की इक्वेशन होती है pH इज़ इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। तो सॉल्ट हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट था और एसिड था हमारे पास कार्बोनिक एसिड। pH 7.4 आ चुकी है। pKa वैल्यू इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, दैट इज द pKa वैल्यू 6.11 प्लस लॉग ऑफ, ओके सॉल्ट का वैल्यू निकालना है मीन्स इसका, तो हमारे पास मोल्स हो जाएंगे 5 इंटू एक्स, molarity into volume divide by the total volume we can write. H2CO3 value is given 10 into 2, so molarity into volume divide by the total volume which is gonna be cancel. So यहाँ से x value हम calculate कर सकते हैं, so we will get it by solving this 1.29 log of x by 4, so x should be is equal to 78. That should be answer. एंटी लॉग ऑफ 1.29 इज गिवन, सो यहाँ से यहाँ करोगे तो एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी और ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट द एक्स वैल्यू इज 78। क्वेश्चन टफ लेवल पर था, अगर श्योरिटी नहीं थी तो बेस्ट यही था कि इस क्वेश्चन को मूव आउट कर दो। क्वेश्चन बहुत जल्दी भी सॉल्व होने वाला नहीं था, लेंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एसिड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.19। तो कॉन्सेंट्रेशन HQ का दिया है 0.18 एंड मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 1/30। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनदर वीक एसिड विद द कॉन्सेंट्रेशन 0.02। lambda naught Q minus happen to be equal to lambda naught Z minus, then the difference in the pKa value of the two weak acid. Degree of dissociation बहुत ही कम है, less than 1. Both are the weak acid and lambda naught is a limiting molar conductivity, means infinite dilution पे दे रखी है। ठीक है, तो कोराश लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो वी नो दैट सिंस इसमें कुछ वैल्यूज सेम दे रखी हैं, lambda naught Q minus and lambda naught Z minus is same, and molar conductivity की value we know that degree of dissociation will be equal to molar conductivity divided by the molar conductivity at infinite dilution। तो यहाँ से molar conductivity हमको मिल जाएगी अल्फ़ा इंटू molar conductivity at infinite dilution। अब क्वेश्चन में दे रखा है 1/30 दे रखी है molar conductivity Q की, 1/30 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द Z। तो इस इक्वेशन से बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम ये भी बता सकते हैं कि जो अल्फ़ा है Q का वो 1/30 टाइम्स है अल्फ़ा ऑफ Z से। हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, तो अगर Q के लिए हम एज्यूम करेंगे तो C दे रखा है 0.18, दिस इज़ अल्फ़ा ऑफ Q स्क्वायर। सिमिलरली हम Z के लिए ले लेते हैं, तो ये Q के लिए यूज़ कर लिया, ये Z के लिए यूज़ कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इसका 0.2, 0.02 अल्फ़ा ऑफ Z का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो चुकी है, ये इक्वेशन 2 हो चुकी है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो KA फॉर Q, KA फॉर Z, दोनों को डिवाइड किया तो उससे हमारा आंसर आ गया है। अल्फ़ा Q की वैल्यू रख देंगे 1/30 और ऑन कैलकुलेशन हमारा आंसर आ रहा है 100। क्वेश्चन पूछा गया pKHQ एंड pKHZ, मतलब हमें दोनों तरफ लॉगरिथम लेकर माइनस लेना है। तो अगर दोनों तरफ लॉगरिथम लेकर बाद में उसको माइनस डाल के pK में चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर दिख रहा है log 10 स्क्वायर, मतलब 2 का वैल्यू आ जाएगा। सो दैट्स योर आंसर, pKa of HQ minus pKa of HZ, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी शिफ्ट 1 पे आया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन कॉपर +2 till all the copper +2 was exhausted, leading to the
deposition of the 300 milligram of the copper metal. However, the current of the 600 milliampere was continued to pass through the same solution for another 28 minutes by keeping the total volume of the solution fixed at 200 ml. The total volume of oxygen gas evolved at STP during the entire process. Equation given है हमारे पास, masses and Faraday constant everything is given. तो क्लियरली विजिबल है कि फैराडे लॉज पर बेस्ड है ये क्वेश्चन. चलो सॉल्व करके निकाल लेते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से निकालना सबसे आसान है. तो हम निकालेंगे इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर वुड बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2. So W by E that should be is equal to mole into the n factor. दोनों ही इक्विवेलेंट के फॉर्मूला है. सो यहाँ पे कॉपर का मास कितना दिया हुआ है 300 मिली. सो 300 इंटू 10⁻³ एंड इक्विवेलेंट मास फॉर कॉपर होता है 63.54 एंड n फैक्टर इज़ 2 बिकॉज +2 से वो कॉपर पे चल रहा है. तो n फैक्टर कितना चेंज हुआ 2 का. इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, अभी हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, उससे हम वॉल्यूम भी निकाल सकेंगे. n फैक्टर फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है. तो यहाँ पे टोटल 4 हो गए हमारे पास. सॉल्व करोगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है 2.611 10⁻³ अब इसका वॉल्यूम निकालना है. तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम वुड बी इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, दैट इज़ 22400 ml. कैलकुलेशन पे आंसर आ जा रहा है 111.35 ml. इजी क्वेश्चन था. 28 जनवरी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था. 22 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 Kelvin, HSNO-2, SNOH6- and basic medium में bismuth oxide gonna be converted into the bismuth. If the reaction quotient at the given time 10⁻⁶, then EMF of the cell निकालना है. स्टैंडर्ड दे रखे हैं दोनों के. सिंपल ही है. नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं सीधा. यस, हमें पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना भी ज़रूरी है. तो अगर यहाँ के ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो ये +4 पे चल रहा है और ये +2 पे चल रहा है. तो हमें रिवर्स लिखना होगा, मतलब SN. तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो ये +4 है, ये +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो HSNO- is gonna be converted into the SNOH6-2. ये +4 है, ये +2 है. एनोडिक इक्वेशन हो गई है. बेसिक मीडियम में कर रहे हैं और विस्मित का कन्वर्ट होगा रिडक्शन में. विस्मित 0 2 3 +3 से कन्वर्ट हो रहा है विस्मित में. तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एंड हियर द 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे 6 क्योंकि बैलेंस करना होगा. तो 3 यहाँ पे और यहाँ पे 2. सो ट्वाइस यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर एंड 3 यहाँ पर. सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. बाकी बेसिक मीडियम में हमें पता है कि प्रोसेस है कि ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस की जाती है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन चल रही है हमारे पास. सो एंटायर रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रिएक्शन कोशेंट ऑलरेडी दे रखे हैं 10⁻⁶. तो हमारे पास इक्वेशन है ई सेल would be is equal to E0 minus 0.059 by n, n 6 है, log of Q. मैं इसको n लिख देती हूँ. सो E सेल वैल्यू हमें निकालना है. नॉट वैल्यू होता है कैथोड माइनस एनोड. सो ये कैथोड पर है और ये एनोड पर. सो वी विल राइट -0.44 minus 0.90 minus 0.059, n is 6 and log Q is given 10⁻⁶. So when you are solving these entire value, you will get it 0.401. Since वो हमें एक्सप्रेस करनी है x इंटू 10⁻⁻1 में, मीन्स ये आंसर हो जाएगा 4.01 10⁻⁻1. तो x वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4. योर आंसर इज़ 4. इजी क्वेश्चन था. फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 22 जनवरी शिफ्ट 2 पे पूछा गया है. प्लैटिनम पर O2, इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है HCl, M+2 इज़ गोना बी कन्वर्ट इनटू द M. द pH वैल्यू वुड बी. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन एंड H2O मीन्स ऑक्सीजन इज़ आउट फ्रॉम द वाटर. तो हम वाटर का लिख लेते हैं. H2O विल कन्वर्ट इनटू द
H प्लस एंड O माइनस, दैट इज़ 2:1 रेशियो। तो अगर हमने इसको O2 में चेंज किया तो इसका हो जाएगा 4 ऑफ H प्लस मीन्स ट्वाइस ऑफ H2, सो ये हो जाएंगे हमारा 4 टाइम्स, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफ़र करने होंगे। सो तो इक्वेशन लगा देते हैं, ई सेल मीन्स ओनली फॉर एनोड वी आर राइटिंग हाफ सेल इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस टू द पावर 4। प्रेशर ऑफ O2 लिख सकते थे लेकिन 1 बाहर ही दिया हुआ था तो इसलिए इग्नोर कर दिया। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू, ई सेल वैल्यू 1.23 माइनस 0.059 बाय 4 एंड लॉग ऑफ H प्लस टू द पावर माइनस 4। तो इससे वैल्यू आ गई है 1.23 माइनस 0.059 pH। 4 कैंसिल हो जाएगा और ये pH लिख दिया। अब कैथोड का वैल्यू ये दे रखा था, ये हमने एनोड का निकाला है, तो हमारे पास ई नॉट सेल। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना होता है, फॉर ऑक्सीजन टू स्टार्ट इवॉल्विंग द सेल पोटेंशियल बिकम ज़ीरो। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ई सेल शुड बी इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड का वैल्यू ऑलरेडी गिवन, दैट इज द 0.994। this becomes 0 and anode value is given that this is the anode value, so 1.23 minus 0.059 pH। बस अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा pH का वैल्यू आ जाता है अराउंड 4। दैट्स योर आंसर। 23 जनवरी शिफ्ट 2 पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर द मेटल इलेक्ट्रोड इज अंडरगो रेडॉक्स। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन दिया है। M प्लस इज़ प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड C2। यहाँ पे C2 दे रखा है, यहाँ पे C1। ये एनोडिक कंपार्टमेंट है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कनेक्ट की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। C1 इज़ प्रेजेंट एट एनोड, देन C1 इज़ ग्रेटर देन C2। ओके, कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, अगर सेम ही इलेक्ट्रोलाइट दोनों कंपार्टमेंट में होता है तो हम उसको बोलते हैं दैट कॉन्सेंट्रेटेड सेल, एंड इन दैट केस ई सेल की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। अब देखो, क्वेश्चन है ना कॉन्सेंट्रेटेड सेल का है क्योंकि दोनों ही कंपार्टमेंट में सेम इलेक्ट्रोलाइट है, तो एनोड और कैथोड की जो SRP और SOP वैल्यू है वो इक्वल एंड अपोजिट हो गई है, तो ई नॉट वैल्यू इज़ बिकम ज़ीरो। तो उससे हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है, ई सेल इज़ इक्वल टू माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ Q। तो अब ये एनोड पर है और ये कैथोड पर, तो एनोड पर जो इक्वेशन है वो M प्लस में कन्वर्ट हो रही है, मतलब C2, और यहाँ पे M प्लस जो C1 पर है वो कन्वर्ट हो रहा है M पर। तो इससे हमारी इक्वेशन हो जाएगी माइनस 0.059 बाय N लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो C2 बाय C1 ई सेल वैल्यू। हमें निकालना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर द पॉजिटिव सेल पोटेंशियल, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा तो यहाँ पे ये माइनस जो लगा है एक और माइनस से होगा, तो लॉग की अगर न्यूमरेटर वैल्यू बढ़ाओगे तो नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर इसको बढ़ाओगे तो लॉग की नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, और कम होती जाएगी और वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। मतलब C1 को बड़ा होना पड़ेगा C2 से। तो हमारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। C1 प्रेजेंट एट एनोड, ये गलत हो गया। C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड। C1 प्रेजेंट एट कैथोड, देन C1 ग्रेटर देन C2। तो C1 प्रेजेंट एट कैथोड, देन C1 ग्रेटर देन C2, दिस इज राइट। C1 प्रेजेंट एट कैथोड एंड C1 ग्रेटर देन C2। If C1 is present at cathode, then okay, this is misprint, this is C1 lesser than C2, और ये इक्वल का गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर है C1 is present at cathode and C1 must be higher than the C2 to get the positive cell potential। 21 January shift 1 का क्वेश्चन है, the pH and the conduction of the weak acid HX is found to be 5 and 4 into 10 to the power minus 5 Simon। The conductance was measured under standard condition using a cell where the electrode plates having the surface area 1 centimeter square and the length between them is 15 centimeter given.
द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें पता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा शुड बी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल पोटेंशियल L बाय A। तो कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁵, L का वैल्यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर एंड एरिया इज़ गिवन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हमारी वैल्यू आ चुकी है 6 इंटू 10⁻⁴ साइमन पर सेंटीमीटर, दैट इज़ द कप्पा वैल्यू। अब वीक एसिड का pH दे रखा है, pH कितना 5 दे रखा है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है 10⁻⁵। तो इससे हमारे पास C अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि वीक एसिड के लिए C अल्फ़ा ही है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। It would be is equal to kappa into 1000 by molarity. Kappa value already we know that 6 into 10⁻⁴ into 1000 and molarity is given 10⁻⁵. This is the concentration. So on calculation you will get it 6 into 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन ये मीटर स्क्वायर में पूछा हुआ है, तो इसको चेंज करना होगा, मतलब 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 6। तो इससे हमारा आंसर आ चुका है 6 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 21 जनवरी शिफ्ट 2 पे आया है। MX इज़ अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एट 298 केल्विन इज गिवन। KSP का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻10। Standard reduction potential is 0.79 volt. So we have to identify standard reduction potential for metal insoluble salt. So this is the case of the metal insoluble salt, which is basically related to the SRP of metal ion and solubility product KSP. तो इस इक्वेशन को हम ऐसे देख सकते हैं, MX is gonna be converted into the M and X minus aqueous. This is solid. And here is a 1 electron transfer take place, and that's a solid. An equilibrium constant KSP value is given. So we will apply the next equation E X minus MX and metal is gonna be converted into the naught metal M minus 0.059 by N log of KSP. So here the value is given, that is a 0.79 naught value minus 0.059, N is 1 because only 1 electron transfer take place, and log of 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 0.20। तो इसको मिली वोल्ट में चेंज करना है, बिकॉज आंसर दे आर आस्किंग इन द मिली, सो वी विल राइट 200 MV, दैट शुड बी आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेक्शन। कुछ क्वेश्चन टफ थे, स्पेशली 28 जनवरी शिफ्ट पे जो आए हैं वो टफ लग रहे थे, बाकी तो ठीक ठाक थे, लेकिन फिर भी आई सजेस्ट कि पहले वही क्वेश्चन तुम सॉल्व करना जो तुम्हें आते हैं। अगर कोई लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है जो तुम्हें आता है, तो बेहतर यही है कि जब सारे क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, उसके बाद टाइम दो उन क्वेश्चन को जो लेंदी हैं लेकिन तुम्हें आते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट चैप्टर इज़ कमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अलावा बाकी टॉपिक देखने हो तो कैमटाइट पर देख सकते हो। ई ब्लॉक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक ऑलरेडी आई पोस्टेड, विच इज़ क्रिएटिंग द हाई स्कोर इन योर JEE competition. Revising, keep learning. Thank you.